Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shumail Sattar, SS Physics at DPS and College, Sahiwal. Today we will discuss topic number 1.6, that is measuring instrument, from chapter number 1, physical quantities and measurement. And in measuring instrument we will discuss meter rule, measuring tape and vernier calipers. So our objectives are, by the end of the lesson, you will be able to describe the use of measuring instruments in different era, explain the meter rule and measuring tape, define and explain the vernier calipers, and define the least count of measuring instruments. And our contents are, among measuring instruments, we will discuss meter rule, measuring tape, and vernier calipers. So before going to start our today's topic, let's recall some previous knowledge. As you already know physical quantities, how we can define physical quantities? We can say that all measurable quantities are called physical quantities, such as length, mass, time and temperature. ऐसी सारी quantities जो हम measure कर सकते हैं, हम उसे physical quantities बुलाते हैं. जैसा कि हमारे पास कुछ common physical quantities हैं, length, mass, time and temperature. And there are two types of physical quantities. One is the base quantities and the other one is the derived quantities. Base quantities are the quantities which forms the foundation or the base for the other physical quantities, and the base quantities are 7 in number, while derived quantities are the quantities which are derived from the base quantities, and we have numerous derived quantities. Now let's start our today's topic, that is measuring instruments. So what are measuring instruments? Measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. मतलब ऐसे सारे instruments या devices जिससे हम physical quantities को measure कर सकते हैं, जैसा कि length, mass, time and volume, तो इन्हें हम measuring instrument बोलते हैं. Measuring instruments used in the past were not so reliable and accurate as we use today. पास्ट में हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे वो इतने एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होते थे बनिस्बत उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के जो आज हम यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल सनडायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड अराउंड 1300 एडी वर क्वाइट क्रूड. जो पास्ट में हम टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस मेजर करते थे वो इतनी रिलायबल नहीं थी, वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी. ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज्ड नाउअडेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट. जबकि आजकल हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल क्लॉक्स और वॉचेस यूज करते हैं तो वो ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट कंसिडर की जाती हैं. Here we shall describe some measuring instrument used in physics laboratory. अब हम कुछ ऐसे measuring instruments को डिस्कस करेंगे जो हम अपनी फिजिकल लेबोरेटरी में यूज करते हैं. यहाँ हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकती है. दिस इज अ हबल स्पेस टेलीस्कोप. It orbits around the earth and it provides information about stars. So our first measuring instrument is a meter rule. As you can see in the figure, this is the meter rule. और आपने ये देखा होगा और आप यूज भी करते हैं इस meter rule को. Now firstly we can define meter rule as a meter rule is a length measuring instrument as shown in the figure. मतलब मीटर रूल हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को इजीली मेजर कर सकता है. इट इज कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. हम इजीली इससे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर कोई से 2 पॉइंट्स लेट्स से ए एंड बी जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय सम डिस्टेंस, तो हम उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी इजीली इस मीटर रूल के जरिए फाइंड कर सकते हैं. अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है. इट इज 1 मीटर लॉन्ग विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स.
एक मीटर रूल हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग होता है जिसके अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं एंड ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इस मीटर स्केल पे हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स हैं और हर सेंटीमीटर जो है वो 10 स्मॉल डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है और इसकी हर एक डिवीजन को हम 1 मिलीमीटर कहते हैं। Thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule। तो इसका मतलब इसकी सबसे छोटी रीडिंग जो है जो हम मीटर रूल के जरिए फाइंड कर सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर और इसी स्मॉलेस्ट रीडिंग को हम इसका लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हम मीटर रूल के लीस्ट काउंट को कैसे डिफाइन करवा सकते हैं या जनरली लीस्ट काउंट होता क्या है। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है हमारे पास द मिनिमम और द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। यानी ऐसी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं वो उसकी लीस्ट काउंट कंसिडर की जाएगी। अब अगर हम मीटर रूल की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है क्योंकि 1 मिलीमीटर वो छोटी रीडिंग है जो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमने मीटर रूल की डेफिनेशन भी देख ली। अ मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। और आगे आप लिखेंगे इट्स वैल्यू इज 1 मिलीमीटर। तो यहाँ तक 2 क्वेश्चन कवर हो गए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम इस मीटर रूल को करेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं। What is the correct method of using a meter rule? So while measuring length or distance, eye must be kept vertically above the reading point as shown in figure B। अगर हम करेक्ट रीडिंग फाइंड करना चाहते हैं तो हमें मीटर रूल के बिल्कुल ऊपर आई को प्लेस करवाना होगा। सो एज यू कैन सी दैट फिगर बी में करेक्ट पोजीशन दिखाई गई है कि आई किस पोजीशन में होगी तो हम बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। जबकि फिगर ए में आई जो है वो इस रीडिंग के राइट साइड पे प्लेस्ड है तो यहाँ से हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट नहीं होगी बल्कि डाउटफुल होगी। तो द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल इफ द आई इज पोजीशनड ईदर लेफ्ट और राइट टू द रीडिंग पॉइंट। इसका मतलब अगर आप रीडिंग पॉइंट की राइट या लेफ्ट साइड पे आई को प्लेस करवाएंगे तो इससे हमारी मेजरमेंट रॉन्ग हो जाएगी। और अगर हम करेक्ट मेजरमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आई को बिल्कुल अबव होना चाहिए ऑन द रीडिंग पॉइंट। So this is the meter rule. Next our topic is the measuring tape. Measuring tape क्या है? It is also a length measuring instrument. Measuring tapes are used to measure length in meters and centimeter. ये length को measure करती हैं both in meters and in centimeters. Figure 1.5 shows a measuring tape used by blacksmith and carpenters. यहाँ आपके पास एक मेजरिंग टेप दिखाई गई है जो कि ब्लैक स्मिथ्स और कारपेंटर यूज करते हैं। अ मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में ये किस चीज से बनी होती है तो ये एक थिन और लॉन्ग स्ट्रिप होती है। कॉटन की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। एंड जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर लॉन्ग। तो इसका मतलब ये लेंथ में 10 मीटर की भी अवेलेबल हैं, 20 मीटर की भी हैं, 50 मीटर की भी हैं और 100 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप्स भी अवेलेबल हैं। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचेस। और यहाँ मेजरिंग टेप के ऊपर मेजरमेंट्स हमारे पास सेंटीमीटर में भी होती हैं और इंचेस में भी होती हैं। इसका मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ इंचेस में भी फाइंड कर सकते हैं और सेंटीमीटर्स में भी फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ तक मेजरिंग टेप की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो इट इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इट मेजर्स द लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इससे केयरफुली आपने समझना है। सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। ये भी हमारे पास एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अब इसमें और मेजरिंग टेप या मीटर रूल में क्या फ़र्क है, या हम कह सकते हैं कि मीटर रूल और मेजरिंग टेप के होते हुए हमें वर्नियर कैलिपर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
मतलब ज्यादा छोटी से छोटी मेजरमेंट्स लेने के लिए हम मीटर रूल की जगह वर्नियर कैलिपर्स को प्रेफर करते हैं। तो द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज अप टू 1 मिलीमीटर। हमने देखा कि मीटर रूल में सबसे छोटी रीडिंग जो हम मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि मीटर रूल में हम 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी तक मेजरमेंट ले सकते हैं। हाउएवर एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वर्नियर कैलिपर्स। यानी अगर हमें 1 मिलीमीटर से ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, 1 मिलीमीटर से ज्यादा छोटी मेजरमेंट अगर हमें फाइंड करनी है तो हम मीटर रूल की बजाय वर्नियर कैलिपर्स को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 jaws एज शोन इन फिगर 1.6। ये हमारे पास फिगर है वर्नियर कैलिपर की, और अगर हम इसके फीचर्स को पहले डिस्कस करें तो सबसे पहले आते हैं इसके जॉज। जैसा कि आप यहाँ पे इसकी 2 लेग्स देख सकते हैं, जिसे हम जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। एक लेफ्ट जॉ है और एक राइट जॉ है। अब लेफ्ट जॉ के ऊपर लिखा हुआ है फिक्स जॉ। ये जॉ जो है ये फिक्स होता है, मतलब ये मूवेबल नहीं है, और ये अटैच होता है हमारे पास मेन स्केल के साथ। Whereas the other jaw is a movable jaw, इसको हम आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, और ये अटैच होता है हमारे पास वर्नियर स्केल के साथ। इसका मतलब हमारे पास 2 jaws हैं, one is fixed, other is movable, और similarly हमारे पास 2 ही scales हैं। One is the main scale which is a fixed scale, whereas the other scale is movable scale. It is known as vernier scale. So one is fixed jaw with main scale attached to it. Main scale has centimeters and millimeters marked on it. अब अगर सबसे पहले हम मेन स्केल को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट सेंटीमीटर में भी हैं और मीटर में भी हैं। जबकि the other jaw is a movable jaw. It has vernier scale having 10 divisions over it such that each of its division is 0.9 millimeter. अब अगर हम दूसरे स्केल की बात करें तो ये वर्नियर स्केल है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास 10 है, और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो है वो 0.9 मिलीमीटर है। The difference between one small division on main scale division and one vernier scale division is 0.1 मिलीमीटर। अब यहाँ से अगर हम डिफरेंस लें मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग का और वर्नियर स्केल की सबसे छोटी रीडिंग का, तो ये हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आएगा। कैसे? मेन स्केल पे हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1 मिलीमीटर, जबकि वर्नियर स्केल पे हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन है 0.9 मिलीमीटर। तो 1 माइनस 0.9 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 millimeter. So this is the difference between one small division on the main scale and one वर्नियर स्केल डिवीजन। और इसी स्मॉलेस्ट रीडिंग या इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट का मतलब ही, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और काउंट जो होता है मेजरमेंट, मतलब सबसे छोटी मेजरमेंट जो हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके मेजर कर सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट होती है। और ये हमारे पास इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर है। Least count of the vernier calipers can also be found as given below. अब अगर हम लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला डिस्कस करें तो ये हमारे पास क्या होगा? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स विच इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। मतलब अगर हम मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल से, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर कैलिपर का। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मेन स्केल पे सबसे छोटी रीडिंग हमारे पास 1 मिलीमीटर होती है, डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल पे हमारे पास कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं? ये हमारे पास टोटल 10 नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं। तो हम 1 मिलीमीटर को जब 10 डिवीजन से
डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर, विच इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब अगर हम इसी लीस्ट काउंट को, जो कि मिलीमीटर में है, अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो चूंकि मिलीमीटर छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू सेंटीमीटर, तो हमें इस 0.1 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, और हमारे पास यही लीस्ट काउंट जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर एंड 0.01 सेंटीमीटर। अगर आपसे मिलीमीटर में पूछा जाता है तो इट इज 0.1, और अगर इसी का लीस्ट काउंट आपसे सेंटीमीटर में पूछा जाता है तो ये है 0.01। अब यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट जो था वो 1 मिलीमीटर था, जबकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है 0.1 मिलीमीटर है। चूंकि 0.1 मिलीमीटर ज्यादा छोटी रीडिंग है 1 मिलीमीटर से, तो इसका मतलब हम वर्नियर कैलिपर की मदद से ज्यादा छोटी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली। क्या थी वो? सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बट वी कैन गेट एक्यूरेसी ग्रेटर देन एक्यूरेसी ऑफ मीटर रूल विच इज 1 मिलीमीटर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। सेकेंडली हमने इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर ली। कंस्ट्रक्शन में इसके 2 जॉज होते हैं और कोरेस्पॉन्डिंग टू 2 जॉज इसके 2 ही स्केल होते हैं। उसके बाद हमने दोनों की स्मॉलेस्ट रीडिंग देख ली कि मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है और वर्नियर स्केल पे स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है। अब अगर हम उसका डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आएगा, जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का। और अगर इसी लीस्ट काउंट को हम एक फॉर्मूला के थ्रू डिस्क्राइब करना चाहें तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब इन दोनों डिवीजन्स को डिवाइड करके हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया मिलीमीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। तो यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर एंड राइट द कंस्ट्रक्शन एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब अगर हम अपने पूरे टॉपिक को रिकैप्चुलेट करें, समराइज करें, तो देखें हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने मीटर रूल की डेफिनेशन डिस्कस की। हम कहते हैं कि मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमने लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल को डिस्कस किया जो कि 1 मिलीमीटर था। उसके बाद हमने करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ मीटर रूल को डिस्कस किया, मतलब अगर तो हम अपनी आई को एग्जैक्टली अबव द रीडिंग पॉइंट प्लेस करवाएंगे तो हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट आएगी, लेकिन अगर हमारी आई राइट या लेफ्ट प्लेस होगी अबव द रीडिंग पॉइंट तो उससे हमारे पास डाउटफुल मेजरमेंट आएगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये हमारे पास कॉटन की भी हो सकती है, मेटल की भी बनी हो सकती है या फिर प्लास्टिक की भी हो सकती है। उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया और उसमें हमने इसके 3 मेन पॉइंट्स को फोकस किया। पहले इसकी डेफिनेशन देखी, वर्नियर कैलिपर इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन ग्रेटर एक्यूरेसी देन मीटर रूल। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया। इसमें देखा कि वर्नियर कैलिपर्स में क्या क्या होता है, इसके 2 जॉज हैं और 2 स्केल्स हैं। उसके बाद हमने हर स्केल की मेजरमेंट्स देखी, इस पे कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, और एट द एंड हमने इसका लीस्ट काउंट देखा कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मेजर कैसे किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला है और इसकी क्या वैल्यू है। सो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर होम टास्क। फर्स्टली यू हैव टू लर्न द टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकेंडली यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर as 1.032 centimeter using vernier calipers. Up to what extent do you agree with it? Option A 1 centimeter, option B 1.0 centimeter, option C 1.03 centimeter and option D 1.032 centimeter. अब इसका आपने राइट आंसर देखना है कि क्या होगा अकॉर्डिंग टू द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सेकेंड क्वेश्चन इज, अ मीटर रूल इज अ which measuring instrument? It is a mass measuring instrument, option B length measuring instrument, option C time measuring instrument and option D volume measuring instrument. And the last question is, least count of a meter rule is
Option A 0.1 millimeter, option B 1 millimeter, option C 10 millimeter, and option D 100 millimeter. So that's all for today. Thank you so much for listening.